Welcome back once again, all of you. Today we go for the session about connections of the devices and their connection cable like LAN cable. Okay, so just without any delay, just now start. First, we open the last save project. What is the last save project? This is the last save project. Yes. Okay. So if any have difficulty regarding selection of these devices in your packet tracer, either installation of the packet tracer, please ask. Otherwise, you go ahead. अगर किसी को पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करने में और इस तरह का डिवाइस सिलेक्शन करने में किसी को प्रॉब्लम आई हो तो काइंडली पूछें, शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो रिस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स का मतलब क्या समझें? ओके ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। Here we connected, this is the router, this router for your campus. Suppose if you want, uh, for the example, if you want anyone want to make open your company, your college, institution, either one building. So suppose Astha, you are open one institute and give the internet each and every classroom, hostels room, and uh, each for every student also. So in this case, what required? What is the minimum requirement? अगर आप अपने कॉलेज के अंदर खोल रहे हैं, आस्था को मैं नाम लिया है, तो अगर आस्था जी मान लो आप कॉलेज एक खोल रहे हो और अपने कॉलेज के अंदर सभी को इंटरनेट देना चाहते हो, घर पे इंटरनेट लेना इट इज इजी। टेक ए मोबाइल फोन, टेक ए लैंडलाइन फोन, सिंपली एप्लीकेशन एंड इजी इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल एट योर होम। बट आपका कोई कॉलेज कैंपस है, कोई होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन दिस केस not single telephone line is sufficient for this. In this case we just go for the ISP and demanding bandwidth, one lease line मतलब connectivity between provider router to your hotel, institution, campus between by the optical fiber. Today is optical fiber already explained in the last session video. Okay, so and this lease line, what is the bandwidth as per your desire? जो भी आपकी इच्छा है उस हिसाब से आप बैंडविड्थ मांग सकते हैं। ठीक है, तो सपोज इन माय केस इन LTTC 100 Mbps is the lease line here. And another thing, this is the company, the BSNL, that is ISP. Another router will be available in your campus, आपके campus में. So this router purchased by the your institution, either take on a rent by the company. ये जो राउटर है या तो आप खुद खरीद लें, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, डिपेंड ऑन योर मनी। जैसा कंपनी होती है उस हिसाब से राउटर भी हम लोग खर्चा करते हैं। ठीक है, आइदर टेक ए ऑन रेंट, या इससे हम जो भी कंपनी आप इंटरनेट ले रहे हैं, यू टेक ए ऑन रेंट। ओके, नो प्रॉब्लम। इस केस में क्या होगा फिर? और कनेक्टिविटी बिटवीन दिस लाइन इज द बाया ऑप्टिकल फाइबर। दिस इज द ऑप्टिकल फाइबर इन द टूडे सिनारियो। ओके, आज की डेट में ऑप्टिकल फाइबर है क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर इज कम्युनिकेशन बिटवीन टू लॉन्ग डिस्टेंस, यूजर एंड सेंडर। जो आपका यूजर है और रिसीवर है, सेंडर रिसीवर है, दोनों के बीच में ऑप्टिकल फाइबर लगेगा। अब इन द कॉलेज कैंपस दिस राउटर कनेक्टेड टू द स्विच, वन स्विच, अनदर वाईफाई, अनदर स्विच, वन। एक ही स्विच से आप कई स्विच भी जोड़ सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, और जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वन स्विच टू अनदर स्विच, दिस इज द लैन, दिस ऑल इज नोन एज द लैन। ओके, so now just
in the whole world, there are two types of media is most important. One media is the copper wire in the current scenario, and another media is the optical fiber. For internet in the local level, local campus, local at your home, which types of cable required? This is the copper based cable required. Generally, this cable in the market known as the LAN cable. आई नो कि सभी ने लैन केबल देखा होगा, मैं भी दिखाता हूँ डायरेक्टली. लैन केबल, दिस इज द लैन केबल इमेज. This cable is the LAN cable. At local level, either you connected by the Wi-Fi, either you connected by the directly from switch to your computer. This cable is the most important cable in the current time. या in other word, आप दूसरे शब्दों में कहें, optical fiber and LAN cable, almost 99% communication done by these two types of media. Optical fiber, either LAN cable. Local level, definitely LAN cable. Long distance communication, optical fiber in the current time. Okay. Wireless is nothing, simply wireless from user to the nearby tower, nearby Wi-Fi, you are connected wireless only. All other connectivity is the wireline connector, wireline communication. Okay. तो दिस इज द डिफरेंट. ये आपके सामने जो दिख रहा है ये सब लाइन केबल्स हैं, ठीक है ना. दीज ऑल आर लाइन केबल. माय क्वेश्चन इज दैट आई नो कि ये सभी केबल आप लोगों ने देखा होगा, नो डाउट. आई नो होपफुली कि ईच एंड एवरी नो वेल अबाउट दिस केबल. तो मेरा क्वेश्चन ये है, माय क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ यू, हाउ मेनी वायर इन दिस लाइन केबल? कितने वायर होते हैं इस केबल में, लाइन केबल में? यस, give the answer via the chat. How many wire in the LAN cable? क्या आप लोगों ने एक LAN केबल देखा है? फर्स्ट टेल मी. और इसमें कितने वायर होते हैं? यस, सोनाली, रोहित, समीर. अच्छा, Sayantani, that 6. Rohit also 6. Okay, no problem. Yes, Varsha, how many wire in this cable? Are you aware about this cable? It is the most important cable. ये बहुत ही important cable है आज की डेट में. चलिए, कोई बात नहीं. नहीं पता, that no problem. बताने के लिए बैठा हूं मैं, ठीक है. इफ यू गो टू मार्केट, वांट टू परचेज लैन केबल, लैन केबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केबल, ठीक है ना. बेसिकली दिस इज द कॉपर अलाव. कॉपर अलाव मतलब ओरिजिनल वायर इज द कॉपर material and other thing like glass, like aluminum, like cadmium mixed with this copper wire, it make copper alloy cable. एंड जो भी आप एक्स्ट्रा मिलाएंगे, सिल्वर मिला देंगे तो और इसकी आपको मालूम है सिल्वर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडक्टर या मोस्ट पावरफुल कंडक्टर. तो अगर वो मिलाएंगे तो पैसे भी बढ़ेंगे, मनी में भी रेट बढ़ेगा, और उसका जो कंडक्शन है वो भी वेरी हाई स्पीड हो जाएगा. ओके, दिस इज अ कॉपर अलाव, ठीक है. Copper alloy. Now, how many wire in this LAN cable? This is the 8 wire. First of all, that is 8 wire, not 6 wire. If you go for the market in the today, purchase a LAN cable, so definitely 8 wire cable will be there. In other words, 4 pair. ये 8 वायर का केबल मिलेगा या 4 पेयर का मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रॉनिक्स वायर, दिस इज ऑलवेज वर्किंग इन द पेयर. ओके. और मार्केट में आप जाएंगे तो कैट 5, कैट 6, कैट 7, कैट 8, ये डिफरेंट टाइप के केबल्स मार्केट में अवेलेबल हैं. यू इफ आई गिव any cable, any types of cat means category. If category 5 cable, category 6 cable, category 7,
आपको कोई भी केबल अगर हाथ में पकड़ा दें तो इट इज नॉट इजी टू आइडेंटिफाई कि विच टाइप्स ऑफ केबल। आप ये कोई केबल अगर दे दें, अगर मैं आपसे पूछूं, इफ आई हैव द क्वेश्चन दिस केबल इज द लैन केबल, नो प्रॉब्लम, जनरल मैनर, ब्रॉडकास्ट मैनर, these all are the LAN cable, no doubt, okay। now अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें से, नाउ माय क्वेश्चन इज है कि दिस इज द कैट 5 केबल, कैट 6 केबल, कैट 7, कैट 8, व्हाट इज योर आंसर? आपके पास बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये सारे केबल लुक लाइक ऑल केबल आर सिमिलर, ऑल केबल आर हैव 8 वायर, ठीक है ना। तो देखने में एक जैसा होगा और सभी में 8 वायर होंगे और सब आपके सामने एज पर स्क्रीन ऑल आर केबल। इट मे बी कैट 5, हियर लुक लाइक कैट 5, हियर इज अ कैट 6, बट व्हाट डिफरेंस बिटवीन दिस केबल? एनी आइडिया अबाउट दिस? किसी को इस बात का आइडिया है कि क्या डिफरेंस हो सकता है? देखने में एक जैसा होगा, लुक लाइक ऑल आर सेम, नंबर ऑफ वायर इज ऑल आर सेम, आइदर कैट 5, कैट 6, कैट 7, कैट 8, डजंट मैटर। तो इसमें डिफरेंस क्या है? This is only one difference in this cable, making of the wire, copper wire by default all are, और उसके साथ copper wire तो होगा ही, other allow like aluminum, like silver, like cadmium, you mix with this। तो ड्यू टू दिस अगर आप मिक्स करेंगे, अलाउ बनाते हैं कॉपर वायर के साथ में, तो इसके आधार पे जो कॉपर वायर है, ये जो आपका लैन केबल है, उसकी एफिशिएंसी मे बी इंक्रीज and maybe high performance due to the mixing of valence। Yes, Amisha is very nice। Internet speed is the most important factor of this cable, okay। तो क्या होगा, मैं आपको फिर से यहाँ बताता हूँ। यहाँ पे all are the 8 LAN cable, no problem, all are 8 wire, all are the same, look wise all are same। इसमें क्या होगा, डिस्टेंस होगा, लेंथ। सबसे पहली चीज कितनी दूरी तक काम करेगा, length in the practical manner। I give the answer, practical answer, not books knowledge, not Google search, I just, it is a practical knowledge। this is a 90 meter, चाहे cat 5 हो, either cat 5, either cat 6, cat 7, cat 8, all cable is the practical length only 90 meter, केवल 90 मीटर है। ऑलरेडी वी डिस्कस इन द स्टरडे वीडियो, आपने, इसीलिए मैंने बोला था इंटरनेट ध्यान से सुनिए। सब लोग, कुछ लोगों ने लिख के दिया है कि 90 मीटर होता है, ओके, नो प्रॉब्लम। बट एंड जो बीन बैंडविड्थ है, इफ यूज द कैट 5 केबल, मैक्सिमम 10 Mbps। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैंने घर में इंटरनेट लिया है, ठीक है, 100 Mbps का हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। यू आर पेमेंट 100 Mbps टेकिंग इंटरनेट फ्रॉम एनी ISP, बट आपका यू फ्रॉम मॉडम टू योर कंप्यूटर, इफ यू यूज कैट 5 केबल, ठीक है, व्हाट हैपन, आपने 100 Mbps का इंटरनेट स्पीड लिया, लेकिन अपने मॉडम से कंप्यूटर के बीच में आपने जो केबल लगाया उसको आपने कैट 5 लगा दिया, क्या होगा? क्या ये लॉजिकल है? टोटल वेस्ट ऑफ मनी। आपने 100 Mbps का केबल लिया, यू टेक 100 Mbps स्पीड फ्रॉम द ISP, मस्ट बी इंश्योर कि कैट 5 केबल इज देयर, नॉट विल बी यूज, अदरवाइज 100 Mbps पेमेंट ऑफ 100 Mbps स्पीड इज टू मच स्लो। आपको कैट 5 यूज नहीं करना, अगर बिलो 100 MB 10 Mbps नो प्रॉब्लम, यूज द कैट 5, देयर इज नो एनी इशू, ठीक है। सेम इन द कैट 6, distance is also 90 meter, and mostly in India maximum 90% cable is in the LAN, in the case of LAN in the current time, cat 6 cable। earlier cat 5 is also popular, but this time only cat 6 cable, 90 meter and 100 Mbps। but in the today time all are want to more and more speed, more and more speed,
up to due to the optical fiber up to your modem, from exchange to your modem, connectivity is optical fiber. And in optical fiber, infinite bandwidth is possible. So suppose you take 300 mbps, again cat 6 in the current time failure. In this case, cat 7 cable 90 mbps. These all information is practical manner, not books manner. Books say ki 1000 gbps, that is different thing. But in the real, in the your life, this is the practical, and this is a 300 meter, 300 mbps. And as per ideally 1000 mbps is also possible. Okay. Cat 6 cable is not available in India, and as per books knowledge, not my here is not practical. It give to the GBPS स्पीड. ओके, कैट जो स्टेट है हमारे इंडिया के अंदर अभी अवेलेबल नहीं है, अगर कहीं है भी तो हमने उसका प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आई डोंट टेल एनीथिंग अबाउट कैट 8. हाँ, बट it in cat 8 also is the 90 meter. So length wise there is no issue, all types of cable 90 meter. Depend on internet speed, you can choose your cable. Now one thing is that, another thing is how many wire in this cable, already told all of you, 8 wire. So I just make here 8 wire, 1 2 3 4 5 6 7. आप इस बात को भूल जाएं, ये जो केबल है किस कलर का है. अगर कलर वाइज, इफ यू आर गो फॉर द कलर वाइज, their classification definitely all are confused and not easy to remember. अगर आप कलर वाइज इन केबलों का डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप सबके साथ प्रॉब्लम होगी, हमेशा कंफ्यूज रहोगे. मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि केबलिंग कैसे बनाई जाती है. ठीक है, तो simply doesn't matter what color of this cable, just spread and simply 1 2 3 4 5 6 7 8 divided 1 2 3 numbering. Doesn't matter what is the color. आप कलर को, केबल को स्प्रेड करिए और 8 सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर दीजिए. जैसे कि ये यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये केबल्स हैं. यस, ओपन केबल इज वेलर, आप यहाँ पे देख सकते हैं. यस, दिस इज द केबल. तो केबल आपका लुक लाइक इस तरह से होगा. ठीक है ना, डेफिनेटली कुछ और स्प्रेड कर लेते हैं. यह दिस इज द 8 वायर केबल, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है ना, तो यू जस्ट सेपरेट ईच एंड एवरी केबल एंड मेक ए नंबर लाइक दिस. आप सारे केबल को खोलिए, इस तरह से नंबरिंग कर दीजिए. एंड जो कनेक्टर लगाते हैं, मेकिंग ऑफ द लैन केबल, यूज द कनेक्टर. दिस इज द कनेक्टर, लैन कनेक्टर. दिस इज द लैन कनेक्टर. ओके, ये लैन कनेक्टर है. दिस इज 8 वायर. ओके, दिस लैन कनेक्टर ऑन योर स्क्रीन. ओके, so when you're making a LAN cable, just put wire in this thing. कैसे लगाना है आपको, ये इस तरह से लगाना है. राइट, इस तरह से लगाना है. ठीक है, तो यूज दिस LAN connector and making a LAN cable. So this connector in when working in the field, this done by yourself. ये हम ही लोग बनाते हैं. घर में तो ठीक है, at your home you go to the market, purchase LAN cable, that is okay. But when you are posted as a engineer, as a network manager in any organization, this cable is making by yourself. अब आपके द्वारा बनाया जाएगा, वहाँ पे खरीदना नहीं है. खरीदेंगे तो मुश्किल से 1 मीटर 2 मीटर से ज़्यादा नहीं मिलेगा. ये आपको मालूम होना चाहिए कैसे बनता है. तो सिंपली LAN केबल आप लेंगे और नंबरिंग कर देंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. ओके, दूसरे एक साइड में, वन साइड LAN कनेक्टर केबलिंग, दिस इज. अब इसमें सबसे पहले चीज आप समझिए कि फर्स्ट एंड सेकेंड पेयर इज नोन एज द ट्रांस पेयर. थर्ड एंड सिक्स पेयर इज नोन एज द रिसीव पेयर. 7 और 8 इज नोन एज द POE.
and 4 and 5 is known as the dummy pair. Okay, PoE means power of Ethernet. Power of Ethernet. Okay. तो आप केवल को एक्सप्लेन किया और एक्सपेंड करने के बाद सारे को नंबरिंग कर दिया. नंबरिंग करने के बाद व्हाट इज द फर्स्ट पेयर 1 and 2, सेकेंड इज द 3 and 6, 4, 5 and 7. तो देयर 4 पेयर डिवाइडेड सेपरेट किया. इस केस में पहला पेयर 1 and 2 इज नोन एज द ट्रांस पेयर. थर्ड एंड 6 नंबर इज द रिसीव पेयर. 7 and 8 नंबर इज द PoE. 4 and 5 इज द डमी पेयर. दिस इज वन साइड. यू यूज द लैन कनेक्टर. एक साइड लैन कनेक्टर लिया और इस केबलों को ऐसे ही आपने लगा दिया सेम पे. अनदर साइड, दूसरे साइड भी आप इस केबलों को सेम मैनर में नंबरिंग कर दें. सेम मैनर में, सेम, डोंट चेंज योर लोकेशन. देयर केबल लेंथ इज 90 मीटर मैक्सिमम. बिलो 90 मीटर इज ओके, बट मैक्सिमम 90 मीटर. तो डेफिनेटली बोथ इन रिक्वायर्ड कनेक्टर, दोनों साइड मुझे कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी. तो दोनों साइड में आप लाइन कनेक्टर लगा दें 1 to 8. और सेम मैनर में अनदर साइड भी 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इस समय जो लाइन केबल होगा, दिस लाइन केबल इज द नोन एज द स्ट्रेट लाइन केबल. This cable is known as the straight of the line cable, straight line cable. If completely reverse, one side is the 1 2 3 4 5 7 8, another side is completely reverse, 8 7 6 5 4 3 2 1. So now this cable is known as, what is the name of this cable? This is known as rollover. Some place it is known as console cable. Some place is known as VGA cable. अगर दूसरे साइड का पूरा पेयर जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, वन साइड 1 to 8, अनदर साइड द 8 to 1, उस समय आपका जो केबल तैयार होगा उसको हम बोलेंगे रोल ओवर, कंसोल और बीजे. नाम अलग अलग हो सकते हैं बट ऑल आर द सेम. तो माय क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, आर यू नो वेयर यूज ऑफ द बीजीए केबल? बीजीए केबल का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? या आर यू एनीबडी सीन, देखा तो है सबने, कहाँ पे करते हैं बताएं. वेयर यूज ऑफ द बीजीए केबल? यस यस अमीशा. कंप्यूटर मॉनिटर. वेरी नाइस कौशिक. डेफिनेटली डोंट गो टू द कनेक्टर. कनेक्टर पे आप मत जाएं. कनेक्टर इज ओनली फॉर इजिली आइडेंटिफाई द नॉर्मल पीपुल. बीजीए केबल इज फ्रॉम योर कंप्यूटर टू मॉनिटर. दिस इज द बीजीए केबल. बीजीए केबल का प्रयोग हम क्यों करते हैं? ओनली फॉर डिस्प्ले पर्पज. बोथ साइड द कनेक्टर इज द मेल एंड फीमेल टाइप. ओके, so this type of easily identify you by you, either you, me, anyone. This is the BDA cable. और कहाँ यूज होता है सब बता सकते हैं. इट यूज फॉर डिस्प्ले पर्पज. बोथ साइड, इफ योर कनेक्टर इज जस्ट लाइक लाइन कनेक्टर, अगर लाइन कनेक्टर है तो उस समय RJ45 लाइन कनेक्टर इज आल्सो नोन एज द RJ45. दिस कनेक्टर इज a RJ45 connector. Okay, this line connector. If both in the same type of connector, in case of 1 to 8 and 8 to 7, this cable is known as the rollover cable. If one side is the line connector RJ45 and another side is the male or female type connector, this is the console cable. This is the console cable. You can see one side is the male female type connector. This is the female, and another side is the line. But all three cables are the same. Only connector change, their name change, but purpose of all three cable is similar and same. क्या होता है आपका बीजीए केबल का काम?
आप अपने कंप्यूटर मॉनिटर में इसको जोड़ते हैं, जो काम आप कंप्यूटर इसमें डेस्कटॉप पे देख रहे हैं सारे मॉनिटर के अंदर आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। और इसी तरह से दिस केबल इज नॉट यूज फॉर कम्युनिकेशन केबल, दिस केबल इज नॉट यूज फॉर कम्युनिकेशन केबल, इट इज यूज फॉर डिस्प्ले लॉगिन आइदर कॉन्फ़िगरेशन पर्पज। इस केबल का प्रयोग हम लोग केवल डिस्प्ले के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उसके लिए करते हैं। अब तीसरा थर्ड टाइप्स ऑफ केबल पॉसिबल क्या है? इफ आई जस्ट रिप्लेस ट्रांस इन प्लेस ऑफ रिसीव एंड रिसीव इन प्लेस ऑफ ट्रांस, यानी वन साइड इज 1 to 8, अनदर साइड एक तरफ तो वही रहने दीजिए, दूसरे साइड अनदर साइड, दिस इज द 3 6, ठीक है, 1 and 4 5 don't change, 2 and 7 and 8. So only trans and receive will be replaced both in. So in this case your cable is known as crossover LAN cable. This cable is a crossover LAN cable. For communication you have two types of cable. One is the straight cable, another is the crossover LAN cable. Okay. So this is the cable specification and this is the common for across the world. ये जो हमने आपको बताया 8 वायर का केबल, उसका स्पेसिफिकेशन था। दिस केबल मेक 3 टाइप, one is the crossover, one is the straight, one is the console. Crossover and straight cable used for the communication, that means internet, any types of communication. Other BGA cable, it is also due to the connector name will be changed, name may be console, may be rollover, but all cable basic specification is similar. And what is the purpose of this cable? Purpose of this cable is for the display configuration, either login purpose. ये तीनों नाम एक ही हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन इज आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, ये 7 और 8 वायर जो है ये पीओई है, पावर ऑफ इथरनेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पावर ऑफ इथरनेट? एनीबडी टेल मी भाई। इफ यू वांट टू सेंड डेटा एंड रिसीव डेटा, कम्युनिकेशन ओनली सेंडिंग एंड रिसीविंग, so what is the purpose of 4 5, what is the purpose of 7 8? So first my question is the last pair 7 8, this is known as the PoE, power of ethernet, इसका क्या मतलब है? कोई बताएगा? एनीवन? एनी आइडिया किसी को? आपके स्क्रीन पे मैंने एक स्पीच रखा है, आ गया। ओके, दिस इज द स्विच, डी-लिंक स्विच। ओके, तो मैं आप सभी को समझाने के लिए मैंने स्विच का यूज किया है। तो दिस यू कैन से कि ये जो स्विच है आपका, ये भी डी-लिंक स्विच है। दिस इज अ डी-लिंक स्विच, ठीक है ना, डी-लिंक कंपनी। दिस इज 8 पोर्ट 1 to 8, another D-Link switch is also 8 port switch, both are 8 port. कॉस्ट ऑफ एवोप स्विच, जो ऊपर वाला स्विच है, इसकी कीमत करीब अर्लियर जब स्टार्टिंग था तो उस टाइम पे करीब 12,000 अराउंड। आई जस्ट टेलिंग अबाउट ईयर 2010 एंड 11, ठीक है। आज की डेट में काफ़ी चीज़ बदल गए हैं, मैं 2010 और 11 के बीच की बात कर रहा हूँ। और कि आप इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीओई एंड 4 and 5। और जो लास्ट वाला जो है, ये
मिलता था करीब 32,000 का। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेम कंपनी, सेम नंबर ऑफ पोर्ट, बट प्राइस इज टू मच हाई इन कंपेरिजन टू वन अनदर स्विच। एक ही कंपनी में 8 पोर्ट के 2 स्विच हैं, एक स्विच का कीमत केवल 12,000 रुपये बैठ रही है, दूसरे का कीमत 32,000 बैठ रहा है। ये एक ऐसा डिफरेंस क्यों है वो भी आप समझ लीजिए। इन योर कॉलेज हॉस्टल यू जस्ट रियलाइज, आप कॉलेज हॉस्टल में सपोज करो आई स्विच, दिस इज द राउटर, दिस राउटर कनेक्ट टू द दिस स्विच एंड ये स्विच कनेक्ट होगा, यहाँ से हम एक वाईफाई लगाते हैं, ठीक है ना, और नीचे वाले से भी सेम राउटर से हम यहाँ जोड़ देते हैं और एक अनदर वाईफाई लगा लेते हैं यहाँ पे, अनदर टाइप्स ऑफ वाईफाई हियर, ठीक है। अब सपोज ये आप मोबाइल से यहाँ पे जुड़ते हैं, ठीक है ना, आप यहाँ से भी सेम कॉलेज कैंपस यू कैन यूज, बट one Wi-Fi I connected by the upper switch and another Wi-Fi that connected the below switch. Both are the look like 8 number of port. All specification are the similar. लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है कि जो रेट में इतना महंगा हुआ। नीचे वाला जो स्विच है ये पीओई इनेबल स्विच है, पीओई इनेबल स्विच, जो नीचे वाला स्विच है पीओई इनेबल स्विच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पीओई इनेबल स्विच? अगर मैं आई कनेक्ट दिस वाईफाई, तो हियर इन वाईफाई डोंट नीड टू रिक्वायर्ड पावर सप्लाई। आपके घर में मॉडेम लगा है, ब्रॉडबैंड का मॉडेम लगा, और अगर उसमें पावर कनेक्टर लगाने का भी व्यवस्था है, नो प्रॉब्लम, देयर इज ऑप्शन इज अवेलेबल टू कनेक्ट एडाप्टर एंड पावर सप्लाई इन योर मॉडेम, देयर इज नो इशू। बट आपके स्विच में अगर पीओई इनेबल स्विच है तो पावर एडाप्टर लगाने की जरूरत नहीं है। ये पीओई इनेबल स्विच देयर इज नो नीड टू एडिशनल पावर सप्लाई रिक्वायर्ड, लेकिन यहाँ पे हमें पावर सप्लाई लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो हॉस्टल, मोस्टली इन द हॉस्टल आपने देखा होगा कि मॉनिटर लगा, उसके साथ एक ही लाइन केबल लगा होता है ये वाला, और उसके साथ देयर इज नो कोई पावर सप्लाई नहीं होता, बट दे विल बी कनेक्टेड। तो ये तो पीओई इनेबल स्विच हो गया, पावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, नंबर 1। नंबर 2, 4 और 5, 4 और 5, अगर आप नेटवर्क इंजीनियर हैं, कम पैसे में अच्छा काम करना चाहते हैं, इफ यू ऑल आर सपोज बिकम नेटवर्क इंजीनियर एंड इट इज चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू कि मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट, व्हाट वी कैन डू, तो आपको डिपेंड करेगा कि आप किस एरिया में हैं। अब मान लो एलटीटीसी गाजियाबाद में है, एलटीटीसी गाजियाबाद एवरी रूम हैव पावर सप्लाई, देयर इज नो प्रॉब्लम, तो मैं वहां पे, ये पहली बात तो मैं नीचे वाला स्विच क्यों खरीदूंगा, वाई आई परचेज द हाई रेट स्विच, आई जस्ट परचेज दिस स्विच, और हर रूम में पावर सप्लाई है, तो वहीं पे मैं मुश्किल से 1-2 हज़ार रुपए का पावर केबल लगाऊंगा, पावर स्ट्रिप विल अवेलेबल एंड दे कनेक्टेड इन एलटीटीसी कैंपस। ओके, तो एक तो पैसा सेव मनी फ्रॉम इन द परचेजिंग ऑफ द स्विच। सेकेंड थिंग जो मैंने एलटीटीसी में किया, मैंने क्या किया एलटीटीसी में कि आई जस्ट व्हेन कंपनी, जब कंपनी ने मेरे को सामान बेचने की कोशिश की, कंपनी जस्ट डेमो प्रोवाइड टू मी, आई जस्ट टोल्ड टू देम, उनसे मैंने बोला मुझे सिर्फ 4 वायर दो भाई, आई वांट ओनली 4 वायर, नॉट नीड टू 8 वायर। तो भैया जो 8 वायर का केबल था, क्योंकि मुझे ट्रांस एंड रिसीव ओनली नीड, मुझे केवल ट्रांस और रिसीव की जरूरत है, बाकी की जरूरत ही नहीं है, आई नीड ओनली ट्रांसफर एंड रिसीव पेयर। 4-5 इज नथिंग, 7-8 is nothing useless in the your LTTC like a campus, LTTC जैसा कोई कैंपस जरूरत नहीं है वहां पे, टोटल वेस्ट ऑफ मनी। जब कंपनी मुझे वो कर रही थी, एक शब्द बोला, अरे सर ऐसा ना कभी कभी चूहे काट देते हैं, सम टाइम रैट विल बी कट योर केबल, यू कैन यूज इन प्लेस ऑफ 4 and 4 और 5 जो वायर है ना, उसको यूज कर लेना जब चूहे काट लेंगे। तो मैंने कहा हे मैम मिस्टर प्लीज लिस्टन टू मी, आप मुझे सुनिए, 20 साल की नौकरी हो गई, चूहों ने कभी भी सोच के नहीं काटा, जब भी काटा पूरा काटा, अब मुझे पूरा केबल बदलना पड़ा।
कभी ऐसा होता ही नहीं। यू मेक मी पुलिस, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तो उसने कहा भैया, तो मैंने समझ में आ गया कि ये, क्योंकि आई हैव द बेसिक आइडिया अबाउट द दिस केबल, मुझे केबल का बिल्कुल बेसिक आइडिया पता था ना। तो 7 8 अननेसेसरी वाई यूज 32 आई जस्ट परचेज दिस स्विच, सिंपल 4 वायर केबल एंड दे मेक, पहले उन लोगों ने कहा था करीब आपका मिलेगा करीब 35 लाख रुपीज, आई जस्ट मेक ओनली 14 लाख रुपीज, होल कैंपस वाईफाई। तो होपफुली कि आप सभी को भी समझ में आ गया होगा कि केबल में सिर्फ 2 ही पेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कि ये कम्युनिकेशन के लिए वेयर यूज ऑफ द स्ट्रेट केबल, वेयर यूज ऑफ द क्रॉस ओवर केबल। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर, कीप इन द माइंड, if both sides are similar, then crossover LAN cable. Both sides, like one switch to another switch, one computer to another computer, crosswise. Otherwise, straight. A console only for the display purpose. So only you have the 2 types of communication cable. One is the straight cable, one is the crossover cable. Straight cable you can use similar different devices, router to switch, switch to computer. So now just come here, हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ देखते हैं पैकेट ट्रेसर। नाउ आई वांट टू कनेक्ट दिस स्विच, दिस राउटर टू दिस राउटर। It okay, long distance communication there is optical fiber, but in the locally the first connected to the, जो आपका लोकल में जो कनेक्टेड है वो आपका क्रॉस ओवर केबल पे कनेक्टेड होगा। तो मैं जस्ट आई टेक हियर, मैं क्या करूंगा, दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी सिंबल और यहाँ पे ये क्रॉस ओवर केबल, जस्ट यू मूव ऑटोमेटिक, नथिंग कंसोल, just move your mouse, everything will display below straight and is a crossover. Click here, I have there 4 port, मेरे पास 4 पोर्ट हैं। और इंटरनेट पोर्ट, दिस इज द 2 पोर्ट फास्ट इथरनेट पोर्ट। तो यहाँ पे इंटरनेट के लिए मैं अभी जीरो, ये दोनों पोर्ट है, मैं सबके बारे में बात करूंगा। फास्ट इथरनेट जो पोर्ट होता है, इट यूज फॉर द इंटरनेट के लिए, इसके लिए क्लिक करेंगे और इसको फिर यहाँ पे लगा देंगे। इधर मैंने 0x0 लगाया, अनदर साइड यू कैन आल्सो 0x0, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। यू आर, देयर इज नो प्रॉब्लम इफ यू वांट टू 0x1, नो प्रॉब्लम, बट कीप इन द माइंड बोथ साइड व्हेन यू आर नेटवर्क मैनेजर, तो यू ऑलवेज ट्राई कि बोथ इन सिमिलर पोर्ट। अदरवाइज इफ एनीबडी आस्क इफ व्हाट हैपन 0x1, तो कहना नो इश्यू सर, बट प्रॉब्लम इज द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, क्योंकि हम भूल जाएंगे आफ्टर सम डेज, we forget ki where is the next another, because this location may be 4 या 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर another side. ओके, अब मैं यहाँ पे केबल लूंगा, अब राउटर तो स्विच स्ट्रेट केबल, इन स्विच यू कैन पुट एनी पोर्ट नो प्रॉब्लम, ऑल आर द कम्युनिकेशन पोर्ट। एक स्विच से दूसरे स्विच में क्रॉस ओवर 0 to 0 2, क्योंकि बोथ द सिमिलर डिवाइस, and this is Wi-Fi and speed, again straight cable 0 to connect. Okay, now switch to computer, definitely straight cable, both are different device. This is also different. Okay, another computer, just take and disconnect. Okay, and one more, take computer from this side. I want to connect between router to computer for communication purpose. Which types of cable required? अगर मैं राउटर से कंप्यूटर को बीच में जोड़ूं, तो कम्युनिकेशन के लिए मुझे कौन सा केबल चाहिए, क्रॉस ओवर या स्ट्रेट केबल? गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। यस यस,
Any idea about? Both are the router is also known as the mini supercomputer. So now both are the same devices. So that is the crossover query. हमेशा याद रखिए, ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है. क्रॉसओवर बिकॉज राउटर इज आल्सो नोन एज द मिनी सुपर कंप्यूटर. तो कंप्यूटर में कहाँ पे जोड़ना है? वेयर यू कनेक्ट फास्ट इथरनेट पोर्ट. तो यार लैपटॉप LAN. In laptop, this is the LAN port. This is the fast Ethernet port for internet purpose. Okay. So this is FA0. In your computer में भी ऐसे ही होगा. LAN केबल आप यहाँ लगाएंगे. अदर वाई यहाँ पे भी एक वाईफाई भी लगता है, उससे भी आप वायरलेस कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं. किसी को कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ. आप लोग अपने राउटर से स्विच को आप जोड़ेंगे, इसको जोड़ के देखिए, ये कनेक्टिविटी ओके. अब मेरा सवाल ये है कि कितने लैन हैं यहाँ पे. अभी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी गिवन द डेफिनेशन लास्ट 2 डेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैन. तो एज पर आवर डिस्कशन, जो भी हमने पिछले 2 दिन में डिस्कस किया, तो जो हमने उसमें लैन कितने हैं, टोटल नेटवर्क कितने हैं, कृपया आप लोग बताएं. यस, कितने लैन होंगे? यस यस अमीशा, टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ लैन. लैन की संख्या कितनी है? राउटर का एक पोर्ट एक लैन को रिप्रेजेंट करता है. राउटर का एक पोर्ट लैन को रिप्रेजेंट करता है. तो दिस इज द वन लैन. ये राउटर का दूसरा हो गया, दूसरा लैन हो गया. एंड ये आपका जो तीसरा पोर्ट है, ये तीसरा लैन हो गया आपका. दैट इज द 3 लैन. ये चूंकि ब्रेक नहीं है, ठीक है ना, तो ऑलवेज राउटर का वन, अगर यह केबल यहाँ ब्रेक हो जाता तो ये एक अनादर लैन हो जाता और एक अनादर लैन हो जाता. ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ. मंडे को हम लोग फिर मिलेंगे. अभी फिलहाल इसको बना लीजिए और एक बार देख के बनाइए, क्योंकि मंडे को हम लोग नेट बात करेंगे अभी. और जो भी लैन है इसको एज पर योर बुक्स नेटवर्क बोलेंगे. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ नेटवर्क यू कैन शेयर देयर? वी हैव द 3 नेटवर्क. network 1, network 2 and network 3. If the network, what is the ID of network? तो नेटवर्क आईडी आपको मैं जॉब एड भी शेयर किया हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ मान लेता हूँ. दिस इज द नेटवर्क आईडी फॉर द लर्निंग पर्पज. दिस होल एरिया इज हाउ टू आइडेंटिफाई. पूरे एरिया को हम कैसे जानेंगे? नेटवर्क आईडी से जानेंगे. पहला आईपी एड्रेस ही होता है, तो हम एक आईपी एड्रेस ले लेते हैं 192.168.1.0/24. दिस इज द नेटवर्क आईडी फॉर द दिस नेटवर्क. नंबर ऑफ आईपी रेंज, आईपी रेंज कितना हो जाएगा? यानी इस लाइन, इस कैंपस के अंदर इफ आई टेक दिस नेटवर्क आईडी, तो हाउ मेनी कंप्यूटर लैपटॉप यू कैन कनेक्ट इन दिस नेटवर्क. तो ऑलरेडी आप लोगों ने इस बारे में पढ़ चुके हैं. 1.1 से शुरू होगा और 254 तक जाएगा, ये भी आप लोगों ने बात किया. तो इन सारे कंप्यूटर्स को हम लोग आईपी देंगे. नाउ दिस इज सेकेंड, दिस इज नेटवर्क आईडी जो सेकेंड है, इसको हम ले लेते हैं VN92.168.2.0/24. और हम ये तीसरा नेटवर्क ले लेते हैं, नेटवर्क 3, 192.168.3.0/24. मैं इसको सेव कर लेता हूँ. नेक्स्ट सेशन में हम लोग इन आईपी को डालना सीखेंगे. अभी हम लोगों ने सिंपली डिवाइस लिया और जो इम्पोर्टेंस केबल है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस केबल? लैन केबल. All in local network, either you connect by the Wi-Fi, doesn't matter. On back side, definitely LAN cable be used. So in the simple, I just conclude today session. We discuss about the most important local cable. This is the known as the LAN cable. Different types of LAN cable: Cat 5, Cat 6, Cat 7. Only due to the internet speed, they can be used either Cat 5, Cat 6, but all cable are the same. And due to the material,
their internet speed will be increased. Okay, so or this cable normally in the today market all cable rate very nominal charge. आज की डेट में बहुत ही नॉमिनल रेट होगा तो यू कैन यूज, बट पुराने टाइम में कैट 5 और कैट 6 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था, बहुत ज़्यादा पैसे का डिफरेंस होता था। तो उस समय कैट 5 कैट 6 खरीदना आसान नहीं था, सोचना पैसा लेके सोचना पड़ता था। तो आप कैट 5 लो, कैट 6, कैट 7 या कोई भी केबल, एनी केबल। This is the mostly three types of cable. One is the crossover, one is the straight cable. Crossover is the used for same devices, straight the different devices. One another cable is the console cable. Another name of this console cable is the rollover, either BGA cable. All are aware what is used as purpose of the BGA cable. Just used for the display. I work anything in my computer. How you can see help of the BGA cable, it will be connected to your monitor and display. You can see each and everything on your computer. Okay. अभी कोई क्वेश्चन हो, नाउ वी कैन आस्क। अभी कोई सवाल हो, पूछना हो। कल हम लोग फिर मेरा संडे, टुमारो इज द हॉलीडे, नो प्रॉब्लम। कल आपको मैं छुट्टी कर रहा हूँ, मंडे में बात करेंगे। ओके, तो सेशन को ओवर करते हैं। इसको देख के आप लोग बनाइएगा और इसको सेव जरूर करके रखिए, इसमें हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक फॉर टुडे, थैंक यू।